हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं जो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स लोगों का यही एक्चुअली कन्फ्यूजन है। समझ में आ रहा है? देखो क्या है, सपोज यू आर हैविंग an unit step signal and you have to differentiate this unit step signal. After differentiation, what type of signal you will find? Actually, you know, any time domain signal, if you differentiate, then definitely you will find another time domain signal because you are differentiating with respect to this independent variable t. Whenever a signal is there and you are differentiating the signal with respect to time, then definitely you will find another signal which is a function of time. Understood or not? That means suppose you are having xt. Now if you differentiate xt with respect to time, dxt by dt, then you will find yt. That means you are finding another time domain signal, and that suppose let it be yt. So this is very important concept. So similarly, suppose you are having ut, unit step function, and you have to differentiate this unit step function with respect to time, then definitely you will find another function which is a function of time. Okay, now your aim is what type of function you will find after differentiating unit step function and how to sketch the function. Okay, this is very vital. The today's class is very important for concept point of view. Understood? So because student लोग क्या करते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, सर यूनिट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव यूनिट इम्पल्स फंक्शन होगा। अरे क्यों होगा? अभी मैं समझाने जा रहा हूं क्यों होगा। यही तो चीज है ना, क्यों होगा। अगर आप इंजीनियर हो तो क्यों हर वक्त दिमाग में घुसना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, तभी तो समझ में आया। हम लोग सोचेंगे नहीं कंसेप्ट क्लियर है ना, अच्छा इंजीनियर बन पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो क्या करना है अभी देखते रहना। मैं एक एक चीज को समझाने की कोशिश करूंगा, अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यही सोच रखा हूं कि आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो सपोज यू आर हैविंग द स्टेप सिग्नल, you know ut, and you know the definition, proper definition of ut. Ut is equal to 1 for t greater than 0, is equal to 0 for t less than 0, is equal to half t is equal to 0. So this is the definition of unit step function. This definition I have already discussed. Okay, anyway, now if this is unit step function, this is the definition. You can draw the function easily. This is time axis. Looking to the definition, knowing the definition, you can easily plot. See, t greater than 0. Now suppose this is 0 on the time axis. You have to sketch here ut. 0 onwards, t greater than 0, the function value is 1. Suppose this is 1. 0 onwards, function value is 1. Before 0, देखो t less than 0, the value is 0. Before 0, the function value is 0. At 0, see here, at 0, what happens? At 0, the function is discontinuous because at 0, the function, this unit step function or unit step signal having many values. You can say this value, this value, this value, this value 1 is also maybe possible. That means at 0, the function having many value. So which value exactly you cannot say. The value may be anything else from 0 to 1. So therefore, the function is not continuous at t is equal to 0. Or mathematically, if you see 0 just before, 0 time, this is 0 time just before, what is the value? 0. 0 just after, 0 plus, 0 minus means 0 just before, value is what? 0. 0 just after, value is what? 1. 0 प्लस में जो वैल्यू है, 0 माइनस में वो वैल्यू नहीं है। इसमें वैल्यू कितना है? 0, इसमें वैल्यू कितना है? 1. 0 माइनस में वैल्यू 0, 0 प्लस में वैल्यू 1. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू एट 0 is not equal to right hand limiting value at 0. That means the function is not continuous at 0. The function is discontinuous at 0. This is the concept. This is the mathematical concept. So anyway, this function is a discontinuous at t is equal to 0. The function is not at all defined properly at t is equal to 0. Understood? So therefore, if you differentiate this signal with respect to time, where the function is defined, there is no problem in the derivative. But where the function is not defined properly, where the function is discontinuous, there will be the problem which will occur. Understood? तो उसी प्रॉब्लम को हम अभी सॉर्ट आउट करेंगे। तो क्या होगा डेरिवेटिव के बाद एट दिस पॉइंट एक्चुअली बेसिकली समझ में आ रहा है? नाउ देखो, ध्यान से देखना, ये टाइम एक्सिस है, क्लियर, ये डेरिवेटिव ऑफ ut एक्सिस, dut by dt, that means this is another function of time, so that's why I am taking this time axis.
this function versus time I am going to plot here. Exactly on same line I am taking this vertical axis as in case of ut. ut का जो ऑर्डिनेट है उसी लाइन पे ही मैं जानबूझ के dut by dt का ऑर्डिनेट लिया हूं. दिस इज abscissa सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, टाइम दिस इज ऑर्डिनेट. ओके, नाउ देखो जीरो के बाद इसका वैल्यू कितना 1 मींस व्हाट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड यू नो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट 0. तो जीरो के बाद ये डेरिवेटिव ये वैल्यू क्या हो गया 0. जीरो के बाद 0, देयर इज नो प्रॉब्लम. जीरो से पहले क्या है इसका वैल्यू, जीरो से पहले इसका वैल्यू 0, डेरिवेटिव करने के बाद वैल्यू क्या होगा 0. सो जीरो से पहले 0, जीरो के बाद 0. ना जीरो में यू आर डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन. व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिफरेंशिएटिंग व्हिच फंक्शन, दिस फंक्शन. लेकिन जीरो में फंक्शन क्या है, फंक्शन को पहले तो देखो जीरो में क्या है. एक्चुअली एनी सिग्नल you can assign direction over the signal from minus infinity time to plus infinity time. That means you think that you are coming from minus infinity time and you are going towards plus infinity time over the signal. Signal is just see, signal is drawn here, so you are coming in this way, you are moving in this way, rising, then you are going towards infinite in this direction because over the signal you have to move. This is the imagination. Over the signal you have to move and accordingly you just assign the direction, and from what to what you have moved, you have to move from minus infinity time to plus infinity time. Understood? Good. अब देखो ये तो डेरिवेटिव इस साइड का 0 हो गया, इस साइड का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव अगेन 0 हो गया. नाउ 0 में क्या है, ये सिग्नल दिखाई दे रहा है, ये मतलब एक लाइन है. एंड डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट सपोज एट दिस पॉइंट डेरिवेटिव, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट हो गया, इसका स्लोप क्या 0, सो इसलिए डेरिवेटिव 0. यहाँ पे सपोज एक्चुअली डेरिवेटिव करना है इस पॉइंट में, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद स्लोप क्या होगा, वही टेंजेंट का 0, इसलिए यहाँ पे भी 0. तो यहाँ पे अगर डेरिवेटिव करोगे सपोज यहाँ पे, तो टेंजेंट ड्रॉ करो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना होगा, इनफाइनाइट, बिकॉज द वर्टिकल लाइन. तो यहाँ पे भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे स्लोप कितना होगा, इनफाइनाइट. दैट मीन्स इफ यू डिफरेंशिएट दिस लाइन then you can draw the tangent on this line. Tangent on the line is the same as you can say tangent of the same slope of the same line. क्योंकि यहाँ पे जो tangent ड्रॉ करोगे ये ओवर द सिग्नल ओवर सेम लाइन आ जाएगा ना, तो इसीलिए स्लोप ऑफ द लाइन कितना है, इनफाइनाइट. मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट इसी लाइन पे होगा, तो इसका स्लोप कितना है, इनफाइनाइट. यानी कि 0 पे डेरिवेटिव करने के बाद क्या मिलेगा, इनफाइनाइट. समझ में आया कि नहीं, इनफाइनाइट. 0 में इनफाइनाइट मतलब क्या है, इंपल्स जैसा दिखाओगे ना, 0 में इंपल्स, इनफाइनाइट मतलब टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट. तो ये तो पता चल गया 0 में तुमको एक इंपल्स मिलेगा, लेकिन इंपल्स का एरिया क्या होगा इसको हम देखेंगे अभी. तो इतना तो मालूम हो जाना चाहिए, यस 0 में इंपल्स मिलेगा. 0 में क्यों इंपल्स मिला, बिकॉज स्लोप ऑफ द टेंजेंट. टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद स्लोप क्या है, इनफाइनाइट. तो 0 में इनफाइनाइट कैसे दिखाओगे, तो इस तरह दिखाओगे ना, ये आरो इज टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट. सो नाउ दिस इज बेसिकली द कांसेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. दैट मींस इफ यू डिफरेंशिएट दिस with respect to time, then you will find an impulse. Where the impulse will exist, at 0. Where the function is discontinuous, there you are getting the impulse. Okay, so 0 पे discontinuous, 0 पे impulse मिलेगा. अब देखेंगे 0 पे वो जो impulse मिला उसका एरिया क्या होगा. ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है. समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके गुड. अब देखो कैसे मिलेगा, पहले मैथमेटिकली देख लेते हैं. जो इंपल्स मिलेगा उसका एरिया क्या होगा, उसके बाद मैं ग्राफिकली समझाऊंगा कैसे इंपल्स मिला एंड उसका एरिया क्यों 1 हुआ. समझ में आ रहा है कि नहीं. अभी देखो मैथमेटिकली हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से देखो. तो कैसे देखेंगे, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं इंपल्स का. कौन सा प्रॉपर्टी, देखो सपोज दैट इज ए सिग्नल xt, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xt मल्टीप्लाइड विथ del t dt. You know this value, that is x of 0. So this property I have already covered. Okay, see. Now suppose मैं एक इंटीग्रेशन ले लेता हूँ. सपोज क्यों लिया हूँ ये इंटीग्रेशन, अभी समझ में आ जाएगा. ठीक है, पहले ले लो, पहले मान के चलो सपोज एक इंटीग्रेशन वैल्यू मैं फाइंड आउट करना जा रहा हूँ. ठीक है, क्या देखो, माइनस इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सॉरी, x of t dut बाई dt, इसका वैल्यू मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं. देखो xt इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, dut बाई dt दैट इज आल्सो अनदर फंक्शन ऑफ टाइम, बिकॉज डेरिवेटिव करने के बाद किसको, एक टाइम फंक्शन को डेरिवेटिव कर रहे हो, मतलब और एक टाइम फंक्शन मिलेगा. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्या मिलेगा इसको हम देखेंगे. समझ में आ रहा है, पहले देख लेते हैं क्यों इसको लिया, ये समझ में आ जाएगा. देखो धीरे धीरे
क्यों लिया फाइनली पता चल जाएगा। यस सर आपने इसलिए लिया था, समझ में आ रहा है। देखो तो क्या करूंगा अभी, ये क्या होगा, एक फंक्शन है टाइम फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन है टाइम फंक्शन, दोनों टाइम फंक्शन का प्रोडक्ट, दैट मींस हियर यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स यूज किया जाएगा। तो बाय पार्ट्स में क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन, देखो फर्स्ट फंक्शन बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अगेन आई एम रिपीटिंग, देखो याद नहीं होगा तो देख लो, फर्स्ट फंक्शन xt, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dut by dt, सेकंड फंक्शन dut by dt, देन इंटीग्रेशन मतलब dt, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dxt by dt, समझ में आ रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है, dut by dt है, ये dut by dt, ये dt ये इंटीग्रेशन के लिए, फिर फाइनल ये इंटीग्रेशन के लिए और एक dt डालना पड़ेगा, ध्यान से देखना, समझ में आ गया। देन लिमिट क्या है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है। ठीक है, अब देखो एक एक करके करते हैं। देखो ये xt रहा, इसको अगर इंटीग्रेशन करोगे क्या मिलेगा, ut मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस देखो ध्यान से, ये तो तुम्हारा dxt by dt रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इंटीग्रेशन करने से ut मिला, फिर क्या रहा dt, फिर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी डाल दो। देखो ध्यान से, एक एक स्टेप देखते रहो, ठीक है। अभी देखो अभी क्या होगा, देखो यहां पे ये जो लिमिट अभी डाल देते हैं, दैट इज इक्वल टू, देखो xt ut, लिमिट क्या, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यहां पे लिमिट डालो, फिर माइनस इंटीग्रेशन में लिमिट डालना पड़ेगा ना, देखो ध्यान से, तो इंटीग्रेशन में लिमिट डालना पड़ेगा कि नहीं, सो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी dxt by dt, देन दिस इज ut, देन dt, राइट, अंडरस्टैंड। ये स्टेप के बाद ये स्टेप मिल गया, कोई डाउट है, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे मैं समझा रहा हूं, एक एक स्टेप के बाद एक एक स्टेप प्रॉपरली मैं समझा रहा हूं, ओके। देखो डाउट रहना बिल्कुल नहीं चाहिए। अभी देखो क्या होगा, तो ये स्टेप अगर मिल गया तो ध्यान से देखो, तो यहां पे पहले डालता हूं वैल्यू, इंफिनिटी डालता हूं, x ऑफ इंफिनिटी देन u ऑफ इंफिनिटी, पहले इसमें इंफिनिटी डालेंगे, माइनस x ऑफ माइनस इंफिनिटी u ऑफ माइनस इंफिनिटी डाल दें, ये दिस पार्ट का, ओके, माइनस, देखो ध्यान से, माइनस ये दिस पार्ट का हो गया ना, माइनस ut प्रेजेंट मींस integration limit you can change from 0 to infinity, because minus infinity to 0 the value is 0, ut is present, so therefore this integration you may consider 0 to infinity dxt by dt, now 0 to infinity ut का वैल्यू कितना, 1, तो 1 into dt, so I am writing here, देखो ut को हटा दिया, मतलब ut की जगह पे 1 डाला, तो ये 0 से इंफिनिटी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से 0, ut का वैल्यू कितना है, 0, समझ में आ रहा है कि नहीं, सो 0 से इंफिनिटी ये हो गया। देखो x ऑफ इंफिनिटी, u ऑफ इंफिनिटी, देखो यूनिट स्टेप फंक्शन दैट इज नोन टू u ऑफ माइनस इंफिनिटी, u ऑफ इंफिनिटी, u ऑफ इंफिनिटी कितना होगा, 1 होगा, इंफिनिटी में वैल्यू कितना है, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, प्लस इंफिनिटी में, इंफिनिटी टाइम में वैल्यू कितना, 1, तो इसलिए x ऑफ इंफिनिटी इंटू 1, दिस इज x ऑफ इंफिनिटी हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, x ऑफ इंफिनिटी इंटू 1 माइनस x ऑफ माइनस इंफिनिटी, ध्यान से देखो, u ऑफ माइनस इंफिनिटी कितना, माइनस इंफिनिटी टाइम में वैल्यू कितना होगा, 0, तो 0 इंटू दिस, देन यू विल फाइंड एक्चुअली 0, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस, देखो ये पार्ट ये ऐसा हो गया, माइनस, इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, xt, बिकॉज इंटीग्रेशन dxt by dt, दैट विल गिव xt, लिमिट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। अरे क्लियर और नॉट, एक एक स्टेप ध्यान से देखा करो। नाउ दिस इज x ऑफ इनफाइनाइट, x ऑफ इनफाइनाइट इंटू 1, x ऑफ इनफाइनाइट माइनस 0 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करो 0, देन माइनस, ये क्या हो जाएगा, देखो x ऑफ इनफाइनाइट, अरे लिमिट वैल्यू पुट करो ना, माइनस x ऑफ 0, ये हो गया, दैट इज इक्वल टू x ऑफ इनफाइनाइट माइनस x ऑफ इनफाइनाइट, अरे 0 को हटा दो, माइनस x ऑफ इनफाइनाइट, माइनस माइनस प्लस x ऑफ 0, व्हाट रिजल्ट फाइंड, दिस कैंसिल, x ऑफ 0, ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटीग्रेशन लिए थे उसका वैल्यू, उसका रिजल्ट क्या आ गया, x ऑफ 0 आ गया। मतलब कौन सा इंटीग्रेशन लिए थे अभी देख लेते हैं फिर से, ये इंटीग्रेशन लिया था ना मैंने, इंटीग्रेशन
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी डी यू टी बाई डी टी देन डी टी क्या मिला इसका वैल्यू एक्स ऑफ 0। अरे समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? गुड। अगर ये समझ में आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी देख लो क्या है ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। पहला इक्वेशन ये तो था, ये तो मालूम है, दिस इज फ्रॉम द प्रॉपर्टी। नाउ ये इक्वेशन तुमको मिल गया, इसका वैल्यू निकल गया। नाउ दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करोगे, दिस इज इक्वेशन 1 सपोज, दिस इज इक्वेशन 2 सपोज, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, देन व्हाट विल फाइंड? देखो एक्स टी तो इधर है, डी टी तो इधर है, लिमिट तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, राइट हैंड साइड एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 0, दैट मीन्स व्हाट विल फाइंड? डी यू टी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल टी। डी यू टी बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट? डेल टी। अरे अंडरस्टूड और नॉट? Understood or not? Okay. Now this is actually the concept. So after derivative of unit step function, you are getting unit impulse function. That means I have told already, this is your time axis. Now if it is unit step signal, now you are differentiating this with respect to time. Exactly just below you are drawing this. Then you are getting impulse. Impulse means del t. Del t means it will exist at 0, impulse function. And what is the amplitude? Del t before what is written? 1. 1 means, sorry, what is the area? Area is 1. So this is your del t. And this del t is nothing but d ut by dt. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? d ut by dt. So derivative of unit step, unit impulse बन गया। यानी कि देखो ध्यान से, यानी कि क्या हुआ? ये अगर 1 है तो इसको डेरिवेटिव कर रहे हो, ध्यान से देखो, डेरिवेटिव कर रहे हो, कितना हाइट यहाँ पे चढ़ाई किया? +1, तो एरिया हो जाएगा +1, एरिया हो जाएगा +1, 1 इंटू डेल टी। इम्पल्स तो मिलेगा ही, इम्पल्स तो मिलेगा एग्जैक्ट लोकेशन पे, 0 पे इम्पल्स मतलब डेल टी, लेकिन एरिया क्या होगा? एरिया यहाँ पे 1, कितना हाइट चढ़ाई किया? 1 हाइट चढ़ाई किया, सो इसलिए एरिया हो जाएगा 1। समझ में आया? नाउ सपोज देखो ध्यान से, मैं एक स्टेप फंक्शन लेता हूँ which is not actually dut by dt, which is not ut। सपोज मैं ऐसा इंटीग्रेशन लिया, माइनस, ध्यान से देखो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी डी ए यू टी बाई डी टी देन डी टी। ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ए यू टी बाई डी टी डी टी। नाउ अगर तुम इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इसका वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या मिलेगा? एग्जैक्टली सेम मैनर यू कैन प्रोसीड, एग्जैक्टली सेम मैनर यू कैन प्रोसीड। अगर इसको उस तरह प्रोसीड, दैट मीन्स हियर यू आर टेकिंग द स्टेप सिग्नल नॉट यूनिट स्टेप, रादर देन दिस इज ए स्टेप हैविंग हाइट ए, ये ए यू टी लिया। नाउ ए यू टी को डेरिवेटिव करोगे, अगर डेरिवेटिव करोगे, देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखोगे? डी ए यू टी बाई डी टी लिखोगे ना, ये तो लिखना पड़ेगा। तो दैट मीन्स 0 ऑनवर्ड्स कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, बिफोर 0 0, डेरिवेटिव 0, एट 0 यू आर गेटिंग स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यहां पे जो भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप क्या होगा? इनफाइनाइट। दैट मीन्स यू आर गेटिंग एन इंपल्स। तो ये तो पता चल रहा है कि 0 पे एक इंपल्स मिलेगा, लेकिन वो इंपल्स का एरिया क्या होगा वही समझना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वही समझना है। देखो, तो अगर इस तरह क्वेश्चन से, तो एग्जैक्टली सेम मैनर यू कैन प्रोसीड, exactly same manner you can proceed. So if you proceed in this manner, then we'll find the result is nothing but ax0. The result is ax0. ax0 means which function you have to integrate, so that you will find here ax0 a del t. So here if you integrate exactly same manner, you will find ax0. ध्यान से देखो, now you have to take which function? Integration minus infinity infinity xt a del t dt. What is the exact value? a x0। अरे ये होगा कि नहीं? यानी कि अगर कंपेयर करोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? a x0। अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे, देखो ये a del t, दैट मीन्स d, ध्यान से देखा करो, d a u t बाई डी टी, ये इज इक्वल टू a del t। दैट मीन्स अगर तुम्हारा स्टेप हैविंग हाइट a है तो वहां पे एक इंपल्स मिलेगा जिसका एरिया a होगा। मतलब हाइट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स द एरिया ऑफ द इम्पल्स। यही कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो कि दिमाग में रहना चाहिए। ओके।
So see here, so what we are doing, so this is actually the concept. So after derivative of step function, you will find impulse function, and impulse function where it will exist and what will be the area. So that idea I have provided. That means here is a smart. Suppose you are having a step function, again I am repeating. So if you differentiate, you will find impulse here. So कितना चढ़ाई कितना height है step का 1. So therefore area is 1. Now suppose you are having this signal, suppose this is 2, this is step signal, so you can write 2 ut, and if you differentiate this with respect to time, then you will find an impulse here at origin. Where discontinuous, there you will find actually impulse and whose area is 2. That means you can write this is 2 del t. Understood? Similarly, here suppose in general you are having a step signal having height a, this is a ut. Now if you differentiate this with respect to time, then you will find what? Then you will find this is 0, then you will find an impulse whose area is a. This you can write a del t. This is actually the concept. समझ में आ गया? पूरा क्लियर? नाउ अभी देखो इसको क्या करते हैं, अभी मैं ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ग्राफिकली मैं कैसे समझा रहा हूं। सपोज यू आर हैविंग ए सिग्नल जस्ट लाइक दिस, नोइंगली आई एम टेकिंग दिस सिग्नल, ध्यान से देखा करो। मैं एक स्ट्रेट लाइन लेता हूं इस तरह, देखो इस तरह लिया, जानबूझ के लिया। क्यों जानबूझ के लिया अभी पता चल जाएगा, जैसे पता चला था वो इंटीग्रेशन क्यों लिया था, कंपेयर करने के लिए। तो आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे माइनस टी दे रहा हूं, यहाँ पे जो है टी दे रहा हूं, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन माइनस टी से लेके टी तक फैला हुआ है, माइनस टी से टी तक। ओके, समझ में आया? नाउ ये जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, 1 कांस्टेंट वैल्यू 1। ध्यान से देखो तो 1 है, मतलब ये जो एक सिग्नल इसको मैं एक्स टी लिख लिया। ध्यान से देखो ये सिग्नल तुम्हारा एक्स टी, क्लियर और नॉट? पूरा क्लियर? ये सिग्नल तुम्हारा एक्स टी जानबूझ के ले लिया, दिस इज एक्चुअली एक्स टी। एनी डाउट्स? गुड। अब देखो अब क्या होगा, ये अगर सिग्नल एक्स टी, अगर इसको अगर कैमरे में नहीं आ रहा है तो नीचे थोड़ा मैं ड्रैग कर रहा हूँ नीचे, तो इस तरह सिग्नल है, ध्यान से देखा करो। दिस इज योर टाइम एक्सिस। नाउ ये तुम्हारा सिग्नल है, सपोज दिस सिग्नल आई एम सेइंग एक्स टी इज द सिग्नल। नाउ हियर द सिग्नल इन दिस मैनर आई एम टेकिंग, राइट, माइनस टी से टी तक ए स्ट्रेट लाइन फैला हुआ है। नाउ नेक्स्ट अनदर स्ट्रेट लाइन व्हिच इज ए कांस्टेंट लाइन, कांस्टेंट 1। ओके, देखो सो इसका स्लोप क्या होगा, ध्यान से देखो ये हाइट कितना है, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप पहले निकालते हैं। स्लोप, ध्यान से देखो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, व्हिच स्ट्रेट लाइन दिस, इसका तो स्लोप 0 होगा, इसका देखो स्लोप कितना होगा y बाई एक्स। वाई कितना है यहाँ पे 1 है, हाइट 1 है ना, मैक्सिमम हाइट 1, ये मैक्सिमम पॉइंट 1 है तो हाइट 1 है, बाई ये गैप कितना होगा 2t, सो 1/2t इज द स्लोप, 1/2t इज द स्लोप। ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या हो गया 1/2t। समझ में आ रहा है? नाउ देखो अगर स्लोप ऐसा है तो ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है इस पोर्शन का स्लोप भी सेम होगा। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन किसी भी पोर्शन में लो स्लोप तो ऑलवेज सेम रहेगा ना। सो इसका स्लोप भी, मतलब इसका स्लोप अगर, तो ये पॉइंट क्या होगा 1/2, बिकॉज y बाई एक्स 1/2/t दैट इज 1/2। सो दिस पॉइंट विल बी 1/2। अंडरस्टूड? ओके, गुड। नाउ देखा करो, अभी मैं क्या करूंगा, ये जो विड्थ है माइनस टी से टी, इसको इस तरह क्लोज करता जाऊंगा। देखो किस तरह, इस तरह क्लोज करता जाऊंगा। अगर इस तरह क्लोज करता जाऊंगा, हाइट 1 को सेम रखूंगा, टिप वैल्यू को सेम रखूंगा, इस तरह क्लोज करूंगा, हाइट 1 को मेंटेन रखूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह क्लोज करूंगा, हाइट 1 को मेंटेन रखूंगा, तो क्या मिल जाएगा तुमको, स्टेप फंक्शन मिल जाएगा। देखो ये फंक्शन मिल जाएगा, इसको क्लोज किया इस तरह तो ये इस पॉइंट इधर लग जाएगा, फाइनली जब 0 हो जाएगा ऐसा करके 0 कर लो, ये इधर लग जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब स्टेप फंक्शन मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसको मैं इस तरह क्लोज कर रहा हूं सो दैट दिस पॉइंट कम टू दिस पोजीशन, दिस पॉइंट कम टू दिस पोजीशन, एंड यू आर हैविंग द स्टेप सिग्नल जस्ट लाइक दिस। ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। अब ये सिग्नल को मैं डेरिवेटिव करूंगा, ध्यान से देखो, ये सिग्नल को मैं डेरिवेटिव करूंगा। अगर डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा उसको देखते हैं। देखो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी किया है, y इंटरसेप्ट मतलब हाफ है यहाँ पे 1/2, तो y मतलब क्या है xt इज इक्वल टू स्लोप तो मालूम है 1/2t, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप mx 1/2t इंटू x मतलब टाइम एक्सिस t प्लस c मतलब y इंटरसेप्ट कितना है वहां। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो मिल गया, समझ में आ रहा है कि नहीं?
ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल गया। नाउ ये स्ट्रेट लाइन तो मालूम है एक्स टी इक्वल कितना है 1, ये स्ट्रेट लाइन तो एक्स टी इक्वल 1। नाउ अगर मैं लिमिट कैपिटल टी टेंस टू 0 करूँ, ये 2t टेंस टू 0 कर लो, ये टोटल विड्थ को 0 कर लो, ऐसा है, इस तरह, ऐसा नहीं कि इधर इधर, इक्वली इसको कंप्रेस करो, 2t टेंस टू 0 हो जाएगा। तो एक्स टी इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट कर सकते हो लिमिट 2t टेंस टू 0 1/2tt प्लस, देखो ध्यान से, ये 2t टेंस टू 0 एक्स टी तुमको क्या मिल जाएगा, स्टेप सिग्नल, यानी कि ut मिल गया। मैं समझाया था ना अभी, लेकिन क्या कर रहे हो यहाँ पे, हाइट को प्रिजर्व रखे हो, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ऐसे ये भी इधर आ गया, ठीक है कि नहीं, इस तरह कंप्रेस कर लो। सो दिस इज योर लिमिट, ध्यान से देखो, 2t टेंस टू 0 1/2t t mx प्लस हाफ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि तुमको ut मिल जाएगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं, देखो ध्यान से, अगर डेरिवेटिव करोगे तो तुम्हारा एक्स टी क्या है, फिर से मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखो एक्स टी, व्हाट इज एक्स टी, एक्स टी इज इक्वल टू 1/2t t प्लस हाफ, लेकिन कहां से कहां तक, ये सिग्नल -t लेस देन t, ये यहां से यहां तक ना, -t से t तक ना, -t से t तक, ये ना -t से t तक मैं डेरिवेटिव करूंगा। सो नाउ अगर dxt/dt तुम करोगे, ध्यान से देखो, तो क्या मिलेगा 1/2t, t का डेरिवेटिव 1, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ये मिलेगा कहां से कहां तक, -t लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू कैपिटल T, मतलब -t से t तुमको एक कांस्टेंट फंक्शन मिल जाएगा 1/2t। समझ में आ रहा है कि नहीं, कांस्टेंट फंक्शन मिल जाएगा कि नहीं, 1/2t मिल जाएगा, यानी कि जब तुम डिफरेंशिएट करोगे, कौन सा, ये देखो ध्यान से, अगर डिफरेंशिएट करोगे dxt/dt, सो दिस पॉइंट इज -t, दिस पॉइंट इज t, ध्यान से देखो, -t से t क्या मिला, -t लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू t, -t से t तुमको क्या मिला, कांस्टेंट फंक्शन, क्या मिला, ये 1/2t, दिस इज 1/2t। नाउ t के बाद ये कांस्टेंट है, t के बाद तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया ना, -t से पहले इसका वैल्यू 0 है, डेरिवेटिव करने के बाद 0 हो जाएगा, मतलब इसको अगर डेरिवेटिव करोगे तुमको ये फंक्शन मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये फंक्शन मिल रहा है। ना ये फंक्शन का एरिया देख लेते हैं ना, ये तो तुम्हारा गेट पॉल्स है, रेक्टेंगुलर पॉल्स है, रेक्टेंगुलर पॉल्स, इसका एरिया क्या होगा 1/2t हाइट, विड्थ कितना है 2t, तो एरिया तो 1 मिल जाएगा ना। अरे समझ में आ गया कि नहीं, 1/2t इंटू 2t दैट मीन्स 1 एरिया, दिस पॉल्स हैविंग एरिया 1, ये सिग्नल मिल गया। अभी तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए इसको ut पाना, देखो ut तो मिल गया था, ये ut, समझ में आया। नाउ इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे, तुमको डेरिवेटिव करने के बाद ये मिला, लेकिन यहां पे अगर तुम 2t टेंस टू 0 कर लेते, 2t टेंस टू 0 कर लेते, क्योंकि डेरिवेटिव करने के बाद भी 2t टेंस टू 0 करना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ut है ना, तो xt इज इक्वल टू दिस dxt/dt, नाउ पुट लिमिट 2t टेंस टू 0, 2t टेंस टू 0 दिस वैल्यू dxt/dt करें, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर इसको 0 करो, एरिया को 1 प्रिजर्व रखते हुए, देन व्हाट विल फाइंड, हाइट विल इंक्रीज, हाइट क्या होगा इनफिनिट, इसको अगर टेंस टू 0, हाइट टेंस टू इनफिनिट, दैट मींस यू विल फाइंड फ्रॉम दिस पोल्स यू विल फाइंड द इंपल्स, बिकॉज यू आर मेकिंग दिस 2t 0, मेकिंग दिस 2t 0, इसको 2t 0 करने से स्टेप मिला, इसको 2t 0 डेरिवेटिव हो गया ना, एक बार डेरिवेटिव तो हो गया, डेरिवेटिव होने के बाद 2t 0 करो, 2t 0 करने से इंपल्स मिलेगा, दैट मींस यू आर गेटिंग द इंपल्स हियर, impulse here, this is even function, impulse here whose area is 1, whose area is 1, समझ में आ रहा है कि नहीं। So that means if you make this is tends to 0, that means you will get a ut, if you make this tends to 0, then you will get impulse function, that means derivative of ut you will find actually this impulse function, actually xt को derivative this will become ut when limit 2t tends to 0, this will become dut/dt when limit 2t tends to 0, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर और नॉट, ध्यान से देखो, दिस इज इक्वल टू ut when xt, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो xt इज इक्वल टू ut when 2t tends to 0, dxt/dt इज इक्वल टू dut/dt, अरे xt अगर ut हो गया when 2t tends to 0,
जब यहाँ पे 2t टेंस टू 0 ये हो जाएगा ड्यूटी बाई dt, और ड्यूटी बाई dt क्या मिलेगा, इम्पल्स। यहाँ पे जब 2t टेंस टू 0 तुमको मिल जाएगा ut। समझ में आ रहा है कि नहीं, 100% क्लियर। सो दैट मीन्स यू विल फाइंड इम्पल्स हुज एरिया इज 1। सो व्हाट हाइट ऑफ द स्टेप यू आर गेटिंग 1 when 2t tends to 0 height 1, then here you are getting impulse having area 1. This is very beautiful concept, try to understand. अगर इसका हाइट 2 होता कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो ध्यान से, अगर यहां पे मैं कर रहा हूं, सपोज इसका हाइट 2 होता और 3 होता और कुछ भी होता, सपोज ये जो पल्स लिया मैंने, इसका हाइट सपोज मैं a ले लेता हूं, a होता तो क्या होता, ये -t से t, नो प्रॉब्लम। सो -t से t अगर 2t को 0 कर दे तो तुमको जो स्टेप मिलता a हाइट का मिलता, इसको 0 करो, a हाइट का स्टेप मिलेगा, ठीक है। नाउ इसको अगर डेरिवेटिव करोगे तुमको क्या मिलेगा, स्टेप मिलेगा, लेकिन -t से t। लेकिन ये जो स्टेप मिला उसका एरिया क्या होगा, एरिया a होगा, यानी कि यहां पे जो हाइट मिलेगा a/2t मिलेगा डेफिनेटली। यहां पे 1/2t मिला था क्योंकि स्लोप कितना है इसका, a/2t ना, जो स्लोप है वही कांस्टेंट पे रिफ्लेक्ट होगा ना, वही कांस्टेंट में रिफ्लेक्ट होगा जब रेक्टेंगुलर पल्स, जब कांस्टेंट लाइन मिलेगा तो a/2t। तो इसका एरिया क्या होगा, a। अगर इसको फिर से रिड्यूस करोगे तो यू आर गेटिंग इम्पल्स हैविंग एरिया a। दैट मींस इफ यू फाइंड द आंसर, दिस इज नथिंग बट एक्चुअली dxt/dt, दिस इज योर xt। ध्यान से देखो, xt स्टेप कब होगा, जब 2t टेंड्स टू 0, dxt/dt dut/dt कब होगा, जब 2t टेंड्स टू 0। नाउ 2t टेंड्स टू 0 होने से ये तुमको क्या मिल जाएगा, इम्पल्स हैविंग एरिया। सो दैट मींस दिस इज योर dut/dt। अरे समझ में आया कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, पूरा क्लियर। दैट मीन्स एनी स्टेप फंक्शन, ध्यान से देखो अभी, एनी स्टेप फंक्शन अगर तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, एनी स्टेप फंक्शन अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तो at the point of discontinuous of the step function you will definitely get an impulse, and the impulse having the area is nothing but the height of the step. Impulse having the area is nothing but the height of the step. This is very 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 important concept. समझ में आ गया? Okay, next class I will discuss many things more about this discussion. Okay, next video देखते रहना. Thank you.